Hello guys, welcome to my channel Timeliners Media. So this video is all about Kaza journey. आज हमारा फर्स्ट डे है नाको की तरफ. नाको इज़ अ विलेज जो कि काजा से आई थिंक 4 आवर्स दूर है. सो लेट्स बिगिन द जर्नी. Hello guys, welcome to my channel Timeliners Media. So we are on the way to Kaza and currently we are in Narkanda Hill and here Piyush. बहुत अच्छा वेदर है गाइस, चेक दिस आउट. देखो अनएक्सपेक्टेड था, हमें तो लगा था धूप वगैरह होगी बट लकीली वी गॉट वेरी लकी यार. So we have arrived at Tribe Cafe. I'll show the view. So the food was really nice there. It's so long. It will take another more 7 or 8 hours I think to Nako village. But paid puja, you know, always the best. So we are now about to reach Rekong Pio. We are currently near this waterfall. Look at the view. Rekong Pio is just 50 kilometers away from my way. So let's see. Really mesmerizing, the beautiful. Let me show you. देखो भाई पानी गंदा है मगर फ्लो देखो. Look at the view guys. It's really beautiful and incredible. Incredible Kinnor. Hi Sonam. So this was my first part. Second part में हम लोग जा रहे हैं काजा, जो कि और एडवेंचरस होगा और अच्छा होगा. So that's our day 2 and we are heading towards Kaza from Nako village. And by the way, it's a very small village but a beautiful sceneries. So guys, we have reached Tabuk and it took 2 hours from Nako village. Sceneries was really beautiful and the roads, if I say 20 kilometers, I think it was off-road. Rest it was totally a cream highway. Very beautiful highway.
We have reached Matra Regency for breakfast. So it was disappointing. यहाँ पे हमें food नहीं मिला. So we are going to the next उनका पानी location. खत्म. हाँ, because उनका पानी ख़त्म था. So we are going to the next location, that is Cafe Himalayas. So हिमालय का मेन्यू हमें इतना पसंद आया नहीं. So we went to this, the village cafe and restaurant. So food here was really nice and इसी के साथ साथ मोनेस्ट्री की एंट्री भी है. ये है मोनेस्ट्री की एंट्री. So here they have two monasteries. This one is the old monastery. So soothing atmosphere here. अंदर काफ़ी अंधेरा था, but they gave us torch so that उसके थ्रू हम लोगों ने मोनेस्ट्री वगैरह घूमी and it was really a nice experience. So now after Tabuk we are moving ahead to Lanza village. तो हम लोग पहुंच गए हैं की मोनेस्ट्री. ये किब्बर विलेज के अंदर आती है. अब हम जा रहे हैं चीचम ब्रिज. वैसे पीछे लिखा हुआ था कि ये फॉसिल एरिया है, यहाँ पे फॉसिल्स भी मिलते हैं, बट हमें कहाँ से मिल जाएंगे? फॉसिल की वॉच नहीं मिलती? नहीं, फॉसिल की वॉच नहीं मिलती, वैसे फॉसिल्स मिल जाते हैं. So we have arrived at Chicham Bridge, which is Asia's highest bridge. Look at the view. So guys, हम पहुंच चुके हैं हिकिम and it was totally off-road. Look at the view. But boss, सच में बहुत tough route थी. It was really tough. गाड़ी का तो solid बैंड बजा है आज, but नज़ारे अमेजिंग है. And they said that later we'll reach by 20 days maximum. कहाँ पर है? वो वाइट वाली बिल्डिंग है जो. So that was Hikim. Now we are moving towards Comic, but before that we'll have some Maggie and all. So after so much struggle and off roads, we have arrived at Comic Village, and this village is so beautiful. This is the world's highest restaurant and it is open. So let's have some food and some drinks. Come on. So पेट पूजा बढ़िया हो गई है. हम लोगों ने मैगी खा ली है, मोमोज खा लिए, कॉफ़ी पी ली है, लाइम सोडा पी लिया है. अब हम लांदा की तरफ जाने वाले हैं. So we have arrived at Lanza, and in Lanza यहाँ पे बुद्धा की मूर्ति है, स्टैचू है, जो कि एशिया का सबसे हाईएस्ट पीक पे बना हुआ है. I mean वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक पे बना हुआ है. I'm gonna show you. यहाँ पे एयर प्रेशर ही इतना ज़्यादा है जिसके बारे में मैं बता तो नहीं सकता, बिकॉज मुझे पता नहीं है कैसे फील कर रहा हूँ. यहाँ का एयर प्रेशर ही इतना ज़्यादा है कि पता नहीं मेरी आवाज़ अच्छे से रिकॉर्ड हो रही है या नहीं. आई डोंट नो. यहाँ दो कैफ़ेज़ भी हैं. वन ऑफ देम इज दिस शांति कैफ़े एंड सेकंड इज द स्पेसशिप कैफ़े, जिसके बारे में सबने काफ़ी सुना होगा बिकॉज वो काफ़ी पुराना है. लुक एट द व्यू.
दिस इज रियली ब्यूटीफुल यार। अभी तक हम लोगों ने चेक इन नहीं किया है, सो नाउ वी आर हेडिंग जिग्मी होम स्टेज, दैट्स आवर डेस्टिनेशन। सो वी हैव अराइव्ड। काज़ा आकर भी अगर आप लोग होटल में रह गए, वैसे तो यहाँ होटल ज़्यादा है नहीं, होटल है भी तो काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, आई थिंक बाबा आदम के ज़माने के हैं, बट अगर होम स्टे इज़ द बेस्ट आई थिंक। दैट्स अ रिवर साइड व्यू and this is the very beautiful property, we really liked it. Dining area for breakfast and dinner and lunch. So after all this, day 2 ends and day 3 I'm going to cover Dhankar Monastery along with Gyu Village. And yes, our beautiful journey to Kalpa. And yes, that's in Kinnaur. It will be more adventurous and more good. So very good morning. It's 8 AM in the morning. And सुबह का नज़ारा आपको दिखा देता हूँ. You will love it. Look at the town. Guys, if you really liking this series, please like and subscribe to my channel. We are moving towards Dhankar Monastery and then we'll cover Gyu Village. Let's see कैसा रहता है आज का दिन. Treat so special. So हम लोग आ चुके हैं धांकर मोनेस्ट्री. बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर थी ये एंड गाड़ी हमारी फर्स्ट और सेकंड गियर से ऊपर नहीं चली. सो डू हैव अ लुक. दैट्स अ धांकर मोनेस्ट्री फ्लैग. Look at the valley man. This is so good. हम लोगों ने यहाँ तभी स्टॉप लगाया बिकॉज हमें लगा कि हम यहाँ नीचे आ सकते हैं एंड इट वॉज सो कन्वीनियंट ऑल्सो. दो वाटर इज़ नॉट एट ऑल क्लीन बट फील अच्छी आ रही है. तो हम हैं ग्यू विलेज के बहुत नज़दीक. हमारी आईफोन जानती है कि चाइना बहुत नज़दीक है. लुक एट द टाइम इन द वॉच. 1:05 and time at phone is 3:37. So amazing view it is. So we have reached at a location. जिसका नाम है ग्यू मोनेस्ट्री. यहाँ पे एक मम्मी रखी हुई है और 1000 years प्लस से इसको प्रिजर्व किया हुआ है. और अगर कोई बाइक वाला आपको यहाँ स्लोप पे रोके ना तो ना रुको, क्योंकि आपकी गाड़ी का मोमेंटम ब्रेक होगा. You're a treat so special. हम लोग ट्रैवलिंग करते करते पू विलेज पहुंच गए हैं. तो वी आर हैविंग लंच एट कैफे लांगटा. गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं कल्पा. लुक एट द व्यू. ये किन्नर कैलाश के एकदम सामने बसा हुआ है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है. बहुत मज़ा आया कल्पा तक आने में. ये आपको एप्पल के सारे ट्रीज दिख रहे हैं. आपको देखो छोटे छोटे एप्पल्स आपको दिख रहे होंगे. यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है तो हम लोगों ने पहन लिए जैकेट. अब हम कल्पा की मार्केट एक्सप्लोर करने वाले हैं. लेट्स सी क्या क्या इज़ वेरी ब्यूटीफुल. हाँ, रिकांगपिओ में रश ज़्यादा है. यहाँ पे आपको रश कम मिलेगा और स्टे ऑप्शंस भी अच्छे हैं. तो
और बेस्ट थिंग इज़ कि आप नेचर से और अच्छे से कनेक्ट होते हैं। और जगह जगह एप्पल के तो ऐसे ट्रीज दिखेंगे कि मज़ा आ जाएगा। You and me, you and me. We could lay in this bed and just hide away. You'll give me your kisses, you'll hold me so gentle. We could leave this town and you could take me away. We don't have to hide, 'cause you're a treat so special. सो दैट्स ऑल फॉर डे 3। डे 4 में हम करने वाले हैं कल्पा को और अच्छे से एक्सप्लोर। एंड यस, हम मिलने वाले हैं इंडिया के फर्स्ट वोटर से। डायरेक्ट फ्रॉम द किन्नौर। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, मौसम भी बहुत अच्छा है। View of these apple trees from my balcony is literally amazing. किन्नौर की ब्यूटी तो अपने आप में ही बहुत कुछ है। Look at the village and the beauty of किन्नौर। बहुत ज़्यादा अमेजिंग है किन्नौर। वेदर भी बहुत अच्छा है। सो अब हम निकले हैं कल्पा को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड सबसे पहले हम इस वक्त जा रहे हैं इंडिया के फर्स्ट वोटर से मिलने, जिनकी एज है 106। यस, इट्स 106 ईयर्स ओल्ड। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद लोगों में बड़ी उमंग बड़ी, मैं भी अपने दिल में इच्छा कर बैठा कि मैंने भी वोट डालना है। तो मेरा वोट डालने का सिलसिला यहाँ था और ड्यूटी मेरी पाली साइड से ऊपर को था। ठंड इलाका होने के नाते यहाँ के लोगों ने मांग किया कि बर्फ पड़ेगी तो किसने वोट देना। उनके अक्टूबर में इलेक्शन हुआ और पाली साइड से भवन में हुआ। तो एक मानी हुई बात है कि मैंने सबसे पहला वोट मैंने डाला। दिल खुश हो गया कि मतलब हम इतने पुराने, जिनको सब कुछ याद भी था फ्रॉम ईयर 47 टिल 22, और उससे पहले का भी उनको काफ़ी कुछ याद है और उनकी 4 पीढ़ियों के बारे में जाना। इट वॉज सुपर अमेजिंग। सो अब हम आ चुके हैं अपनी सेकंड डेस्टिनेशन पे, जिसका नाम है सुसाइड पॉइंट। एंड इसका नाम सुसाइड पॉइंट इसलिए रखा गया था बिकॉज यहाँ 4 फॉरेनर्स ने आके सुसाइड किया था, जो अब एक बहुत अच्छी टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी है। So now we are in Rogi village, which is Kalpa's, and that is Kinnaur's last village. So now we are heading back to Rekongpio because that's Kalpa's mall road, and हम लोगों ने अभी तक कोई souvenir भी नहीं लिए। So हम लोग पहुंच चुके हैं Rekongpio, यहाँ की मेन मार्केट में। तो ये रेकोंगपियो का मेन चौक है एंड इसी चौक पर बस स्टैंड भी है। एंड आपको यहाँ से सारी बसेस मिल जाएंगी टूवर्ड्स चंडीगढ़, शिमला एंड दिल्ली। एंड इस मार्केट को कहा जाता है कल्पा की मॉल रोड, जो कि कल्पा से 30 किलोमीटर्स दूर है, बट यहाँ सब कुछ मिल जाता है आपको।
आप सुबह घुमा देगा, इसको रुकना नहीं चाहिए भाई। अच्छा So we are at Nakonda Hills now and मौसम is really awesome. So that is why हम लोगों ने एक stop over लिए to have some food. So we have arrived at Dharampur to have some dinner. And from this point, I'll be soon at my place. So that's all for this Kaza series. And thank you so much guys for watching this video, and if you really like this, so please like, comment and subscribe. Thanks for watching guys.